مسیح خداوند کے پاک خوبصورت جلالی لافانی محبتوں سے بھرے یسوع نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں آج کی شام کے لیے۔ ہم سب بدھ کی عبادت میں جو شفائیہ روحانی بیداری کی عبادت ہے، ہم خدا کے مقدس جلالی پاک کلام کو سننے اور سیکھنے والے ہیں۔ ہر روز کی طرح ہم آج بھی اپنے خدا کے زندہ قدوس نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اس کی قدموں میں ہیں۔ یونا نبی ہے اور یونا پر خداوند کا کلام نازل ہوا ہے، اور یونا نینوا میں بھیجا گیا ہے کہ وہ نینوا میں جائے، اس بڑے شہر نینوا میں جا کر اس کے خلاف منادی کرے۔ لیکن یونا نینوا کو چھوڑ کر وہ ترسیس کی طرف نکل جاتا ہے۔ خدا نے اسے بھیجا ہے، نبی ہے، اسے بھیجا ہے کہ وہ نینوا کے لوگوں پر وہ تربیت کا کلام سنائے، ان پر ان کے خلاف منادی کرے کہ تمہاری شرارت اور تمہارے گناہ کے باعث خدا سخت ناراض ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ تم گناہ میں مرو، لیکن یونا نبی اس پیغام کو خدا سے پا کر وہ دوسرے جہاز میں بیٹھ کر وہ ترسیس کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ ہم سٹوری ہم سن چکے ہیں پہلے بھی، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یونا کو جب جہاز میں وہ بیٹھا تو اور بھی بہت ساری اقوام کے لوگ، ادیان کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور لکھا ہے جس جہاز کے اندر یونا بیٹھا ہوا تھا، سمندر میں وہ جہاز چلا جا رہا تھا، اور اجناس یعنی کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں جہاز کے اندر تھی۔ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا۔ بہت سارے وہاں پر ادیان کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ملاح جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ سمندر میں ایک بڑی آندھی اور بڑا طوفان آ گیا ہے، اس کے باعث شاید ہمارا جہاز ڈوب رہا ہے، یا بھاری وزن کے باعث وہ ڈوب رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے اس بیڑے میں سے، اس جہاز میں سے وہ سامان جو تھا، اجناس، وہ باہر پھینکنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جہاز پھر بھی ڈوب رہا ہے تو یونا کی طرف جب نگاہ کی تو یونا سو رہا تھا۔ کیوں؟ وہ بے فکری کے عالم کے اندر ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس شخص کو اٹھایا جائے، ہم ہلاک ہو رہے ہیں اور یہ سو رہا ہے۔ یونا جان گیا کہ یہ میری وجہ سے ہے، اس لیے کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، یہ آفت ہم پر اس لیے ٹوٹ پڑی ہے۔ جب یونا نے یہ کہا کہ تم مجھے جہاز میں سے باہر پھینک دو، تو انہوں نے کہا ایسے کیسے تمہیں جہاز میں سے پھینک سکتے ہیں؟ جب یہ سارا کچھ ہوا تو اسی دوران میں کرا ڈالا گیا، یعنی پرچیاں ڈالی گئیں، اور وہ کرا جو تھا وہ یونا کے نام کا نکلا، اور یونا کو جو نبی ہے اسے جہاز سے نیچے پھینک دیا گیا، یعنی سمندر کے اندر، اور خدا نے
पहले से मछली को, एक बड़ी मछली को हुक्म दिया हुआ था कि वो जैसे ही योना पानी के अंदर गिराया जाए मछली उसे निगल ले। अब ये मछली का निकलना एक बड़ा रेवलेशन है। योना पर वो सारी जिम्मेदारी थी कि वो जिम्मेदारी को पूरा करे जो नैनवा की थी, कि नैनवा को जाकर वो बताए। और योना को जैसे ही मछली समंदर में फेंका गया जहाज में से, तो वो मछली आई और उसने सीधा का सीधा योना को अपने पेट में निकल लिया। और बाइबल मुकद्दस इस बात की शायद है कि योना, सुनिएगा, हम ईस्टर की सेलिब्रेशन कर चुके हैं। योना जो है ये 3 दिन रात तक मछली के पेट में रहा। कितने दिन? 3 दिन रात। यीशु मसीह भी कब्र के अंदर 3 दिन रात रहे। ये वही बहुत सारे मुफस्सिरीन हैं जो ये बात कहते हैं कि योना की तरह यीशु भी 3 दिन रात कब्र के अंदर रहे, और योना भी मछली के पेट के अंदर रहा। और जिस पोजीशन में, जिस हालत में वो मछली के पेट में गया था, उसी हालत से वो बाहर उगला गया। और जब मछली ने उसे उगला तो इसने उससे पहले अपने गुनाह का इकरार किया। इसने खुदा से मुआफी मांगी और खुदा से कहा कि खुदा तू मेरा खालिक है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा रबी है, तू मेरा आका है। मैं तेरे हजूर में अपने गुनाह का इकरार करता हूं। आमीन। 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पहले बाब की 16वीं आयत को तो लिखा, तब वो खुदावन से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मांगी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निकल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। तब योना को मछली ने इकरार के बाद उसे उगल दिया और फिर वो नैनवा में गया, और नैनवा उसके मनादी करने के बायस बच गया। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि आज भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई, बहुत सारे ऐसे बेटियां बेटे इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम से दूर रखे हुए हैं, गुनाह में है, गुनाह भरी जिंदगी है, खुदा की शुक्रगुजारी नहीं है। खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना, हर वक्त उसके हुजूर में रहना, ये हम पर लाजिम है। दूसरे बाब की अगर हम 9वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, निजात खुदावंद की तरफ से है। आमीन। निजात किसकी तरफ से? खुदावंद की तरफ से, जिसने हमारा फिदिया दिया है, जिसने हमारी कीमत चुकाई है, वो हमारी फिक्र करता है। वो यूना की भी फिक्र करता है कि यूना नाफरमान हो रहा है, लेकिन खुदा उसके लिए फिक्र करता है। खुदा ने कैसी फिक्र की कि मछली को ऑर्डर कर दिया है, मछली को हुक्म जारी किया कि यूना मेरा बंदा है, तू इसे जब इसे पानी में फेंका जाए, समंदर में फेंका जाए, तो तू इसे निकल लेना, अपने अंदर ले लेना। हालांकि मछली के अंदर जो कुछ भी जाता है वो अंदर ही अंदर मछली उसे पूरे के पूरे को ही हजम कर लेती है। लेकिन 3 दिन रात तक योना मछली के पेट के अंदर रहा। क्या योना मर गया? नहीं। सवाल यह है कि क्या योना मर गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया है,
तो यीशु कहां पर है? पाताल के अंदर मनादी हो रही है। आमीन। योना को भी जब मछली के पेट के अंदर योना गया है तो इसने अपने गुनाह का, अपनी उस नाफरमानी का इकरार किया है और खुदा ने इसे कुछ होने नहीं दिया। मछली भी उसे निगल तो गई लेकिन उसको खा ना सकी, उसे हजम ना कर सकी। और 3 दिन रात के बाद जिस तरह यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फातेह हो गए, मुर्दों में से जी उठ के फतह याबी का शादियाना बजाया और फिर कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को उसने अपने पाक बेशबहा कीमती लहू से खरीद लिया। इसी तरह से यूना जब 3 दिन रात के बाद मछली के पेट से उगला गया है तो इसके मनादी करने से एक बड़ा इनकलाब आया कि नैनवा जो एक बड़ा शहर था, जो बदी के अंदर, गुनाह के अंदर था, वो नैनवा के लोग बच गए। हालेलुया। आए आज हम सब खुदावंद के हजूर में उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की तारीफ और उसके नाम की सिताइश करें कि खुदा जिंदा है, वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो कादिर मुतलक है और वो हम पर कसरत की बरकतों को नाजिल करने की कुदरत रखता है। नैनवा में योना ने 40 दिन मनादी की और फिर वहां के लोगों ने अपने आप को खुदा के हजूर में रखा और वो दुआ और रोजा में ठहर गए। योना ने मनादी की वहां पर कि बादशाह भी जो है, हाकिम भी जो है, वो भी रोजा में ठहर जाए। और नैनवा में जब रोजा की मनादी की गई तो दुनिया बदल गई। आए आज हम सब भी खुदा के कलाम की ताबेदारी में रहकर जिंदगी बसर करें ताकि 30, 60 और 100 गुना फल आए। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन।